हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। क्या आपको पता है ये बैलेंस शीट हमेशा मैच कैसे हो जाती है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस शीट इक्वेशन जैसा भी कुछ होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड वीडियो के एंड तक आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। So the basic principle behind the accounting equation is that the stuff that the business owns is equal to the stuff that the business owes. And we know that the stuff that the business owns, they are called assets. So जो business के resources हैं, जो business की property हैं, उसे हम assets कहते हैं, right? And the stuff that the business owes, they are called liabilities or the claims. तो जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना होता है वो बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है। नाउ द लाइबिलिटीज और द क्लेम्स दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन हु द लेंडर इज, राइट? सो द फर्स्ट वन इज इंटरनल लाइबिलिटीज। नाउ इंटरनल लाइबिलिटी मीन्स द अमाउंट दैट द बिजनेस ओज टू द ओनर्स, amount that the business owes to the owners. Since for the accounting purpose, business enterprise and the owner, they are treated as separate entities. दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं और हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, राइट? सो जो भी अमाउंट ओनर बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी ही होती है। But instead of writing internal liability, we use the word capital or the owner's equity to describe what the business owes to the owners, right? Now the second one is external liability, the amount which is due to the outsiders. Now what the business owes to the outsiders, that is third parties, जो business को बाहर वाली parties को pay करना होता है, that is external liability, right? Now so our accounting equation becomes that the total assets of the business, that is the stuff that the business owns, will always be equal to the liabilities plus capital, that is the stuff that the business owes to the outsiders and the owners, right? So assets equals to capital plus liabilities. This is the accounting equation, and this equation will always balance, always at any point of time in the business, right? Assets, as we discussed in our previous video, includes cash, bank, debtors, stock, land and building, plant and machinery, etc., right? And liabilities includes creditors, outstanding expenses, loans payable, taxes payable, etc. Now let's take an example that you want to start a cafe. आपको एक business start करना है और आपको एक cafe open करना है, and the business name is Indian Cafe, okay? And you have 10,000 rupees in your pocket and decided to start this business with this rupees 10,000. आपके पास 10,000 ही थे और आपने 10,000 business में लगा दिए. Now Indian Cafe, that is a business, has rupees 10,000 in cash, which are the assets of the business, and this Indian Cafe owes this 10,000 to you, that is the owner, and it is called capital or the owner's equity, right? Now assets of the business in the form of cash increases by 10,000, and the claims against the business in the form of capital also increases by 10,000. So assets 10,000, liabilities अभी हमारी है ही नहीं, and capital 10,000. So the equation balances, and it always balances, right? Now let's see some more transactions. Now your business requires some more funds. पैसे और चाहिए, right? 10,000 से ज़्यादा फंड्स चाहिए और आपके पास तो है नहीं, राइट? सो आपने अपने किसी फ्रेंड से लोन ले लिया 15,000 का. सो कैश इन द बिजनेस इंक्रीजेज बाय 15,000 एंड दिस 15,000 इज अ लोन विच इज पेबल टू द आउटसाइडर, राइट? सो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस. तो लाइबिलिटी में लिख देते हैं लोन पेबल 15,000. नाउ इफ वी सी द अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश हो गया 25,000, राइट? लाइबिलिटीज में हमने लिख दिया 15,000 का लोन पेबल और कैपिटल था हमारा 10,000, तो 25,000 इक्वल्स टू 25,000. इक्वेशन हो गई फिर से मैच, राइट? नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस दैट बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, राइट, सो इट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द बिजनेस. कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो किसका है? ओनर का है. सो अगर कोई भी बिजनेस एक्सपेंस होता है तो वो हम क्या करते हैं? कैपिटल से लेस करते हैं. और अगर कोई रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो हम कैपिटल में ऐड करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन लेते हैं, इंडियन कैफ़े जो आपने स्टार्ट किया था उसका रेंट पे किया 5,000 रुपीज़, 5,000 फॉर रेंट, राइट। फर्स्टली दिस विल रिड्यूस कैश बाय 5,000 क्योंकि आपने 5,000 पे कर दिया कैश में, एंड सेकेंडली रेंट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंस, रेंट एक बिजनेस एक्सपेंस है, सो 5,000 हम कैपिटल से रिड्यूस कर देंगे, कैपिटल कम हो गया 5,000 से। नाउ द बैलेंस ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, नाउ वी हैव एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, राइट, 20,000 के, लायबिलिटीज़ है हमारी 15,000 की, और अब कैपिटल हो गया 5,000 का, राइट। एसेट्स हो गए 20,000, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी हो गए 20,000, मैच, ओके। सो द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कि आपने फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश ₹5,000, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000, ओके। सो नाउ दिस विल रिड्यूस कैश बाय 5,000 से आपका कैश कम हो गया, एंड हमें पता है फर्नीचर जो होता है वो बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो एक न्यू एसेट जनरेट हो गया इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, वो भी 5,000 का। सो दिस ट्रांजेक्शन एक्चुअली डिक्रीजेज वन एसेट दैट इज कैश and at the same time increases the other asset that is furniture with the same amount, तो टोटल तो चेंज हुआ ही नहीं, राइट। नाउ इफ वी सी द अकाउंटिंग इक्वेशन, आपके बिजनेस में कैश अब कितना है 15,000 का, फर्नीचर आ गया 5,000 का, तो सो एसेट तो 20,000 के ही है, एंड लायबिलिटीज तो वही है 15,000 और कैपिटल 5,000, राइट। तो दोनों साइड दोबारा से हो गई मैच, ओके। तो ऐसी बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, and we can conclude that every transaction has a double effect, and in each case assets will always be equals to the liabilities plus capital, okay। Now this accounting equation is also known as balance sheet equation। accounting equation को ही balance sheet equation भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? Because balance sheet is a statement showing assets, liabilities and capital of the business, ठीक है। तो इफ वी सी द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें, एक साइड में वी राइट एसेट्स एंड ऑन द अदर साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, राइट। एंड ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती है, विच मीन्स एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही तो अकाउंटिंग इक्वेशन है, राइट। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, okay। So that's it for today guys, thank you so much for watching। if you found this video informative, please like and share this video, and if you have not subscribed to the channel yet, please press the subscribe button, and if you have any doubt or want me to cover any specific topic, please mention it in the comment box, right। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।